Hello, my dear friends and ladies and gentlemen. I welcome you all to the Prime Skills. So, I welcome you all once again in 100 Days Vocabulary Masterclass, a journey to build strong, advanced, powerful, and persuasive vocabulary in just 100 days. This is the day 3 और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं. So first of all, I would really like to thank you all that you people have actually reached to day 3. If you have completed the orientation, the day 1 and day 2, you are actually worth congratulations. Okay? Because you people are consistent and with discipline, you are moving towards your goals. Always remember, my dear friends and ladies and gentlemen, if you are disciplined about anything, you are definite to get desired results. Okay? You stay with me. Keep learning the way you are learning, and I can guarantee you that your vocabulary is just going to become as amazing as you have ever desired to have. Okay, so let's move further and let us talk about our day 3. Before moving further to the day 3, let me just start with a beautiful quote which I always do. Motivation is what gets you started. Consistency is what keeps you going. If you are motivated, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपका जो मोटिवेशन है वो केवल आपको स्टार्ट करने में मदद कर सकता है. मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ किक. एक किक जब आप लगाते हैं तो आपकी जो बाइक होती है, आपका जो स्कूटर होता है, दैट जस्ट स्टार्ट. But if you do not keep on just putting the accelerator on, or if you keep on just rotating the accelerator, you would not be able to keep the momentum. You would not be able to keep the race. That race and that momentum is basically your consistency. If you keep yourself very much consistent and disciplined in learning, believe me, you are going to achieve your goals. Okay, so let's move further with this part. So what a typical day look like, as we have already discussed. Number 1, we have near about 10 words every single day, and these are not only 10 words. ये केवल 10 words नहीं है. उन words के साथ उनके synonyms, उनके बहुत सारे different forms. तो अगर देखा जाए तो एक session में आप around 40 to 50 minimum words आप learn करते हैं. So now you can understand, if there are 100 sessions and you are learning 40 to 50 words in per session, you can understand how much rich you are going to become in terms of vocabulary. So make sure you are watching all the sessions completely. Accompanying quizzes. So quizzes are there. If you do not practice, you would not be able to improve your vocabulary. Please try to understand that. Okay. And then there would be flashcards. How would you revise? Okay. So revision would require a lot of things. Revision tools are available in this complete course. As I have already mentioned, this is not a collection of videos. ये केवल videos का collection नहीं है बच्चों, ये एक पूरा course है जिसको अगर आप complete करते हैं, you can have a wonderful vocabulary. Okay? And then podcast. If you don't have time to just go through the the flashcards, if you don't have time to just revise by watching the video, suppose you are driving or you're doing anything else, listen to the podcast, you will get it revised. And then assignments would be there. There would be daily review. There would be weekly review, weekly quizzes and assignments, and there would be a monthly competition. If you win it, you're going to win exciting prizes over there. Okay? So make sure you are committed to this entire course. You are committed to all the levels and all the tools which I'm going to provide, and we are going to have an amazing vocabulary. Okay? So the most important part of today, as I have already mentioned, every single day we do the recap. Okay, so in this recap, I would be requesting you to pause the video. If you have watched the day 1 and day 2, request you to pause the video right now, and just try to find out how many words do you remember. Okay, so if you remember all these words, congratulations, we are really going with an amazing pace. If you don't remember even a single word, don't worry, it's absolutely okay, it's absolutely normal. And that's why we have kept this slide over here. What you need to do, either go to the flashcards or go to the podcast or the video itself, try to find out what is the meaning of that word, and then just keep it in your mind again for the next time. Okay, so for example, you know the meaning of done, just take it, mark it as right. Then fob, if you don't know the meaning of gad, look for the meaning of gad. So in this way, if you keep on revising every single day,
you are going to get a powerful vocabulary. Okay, so I am hiding my camera for some time, okay, just for 30 seconds, but you pause this video so that you can revise all the words. Make sure you remember all the words. So I hope you paused the video. Now we are just moving further. So today in day 3, we are going to learn words which are from Greek and Romans. So let's move ahead. Number 1. So word of the day, first word of day 3 is aphrodisiac. Aphrodisiac. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो D है, इस D के ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन टू. ओके, सो aphrodisiac. Okay, so that is the word, the pronunciation. Aphrodisiac can be adjective or a noun. It can be used as both adjective and noun. As an adjective, how would you use it? Arousing sexual desire. Anything which arouses a sexual desire in anybody is called aphrodisiac. There are certain medicines, okay? So, ऐसी कोई भी चीज जो sexual desire को arouse करती है, that is basically called aphrodisiac. And apart from that, it can be played or it can be used as a noun also. For example, an aphrodisiac food, drug, potion or other agent that arouse sexual desire or make one more amorous. ओके, amorous का मतलब होता है थोड़ा सा प्रेम के प्रति ज्यादा डेडिकेट हो जाना. जब कोई व्यक्ति प्रेमातुर हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं amorous. ओके, सो ऐसी कोई भी दवाई, ऐसा कोई भी खाना या ऐसा कोई भी चीज जो किसी व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर्स को अराइज करती हो, अराउज करती हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड aphrodisiac. Okay, so these are the two things, adjective and noun. You can use them just like adjective and noun. Examples: some people consider powdered rhinoceros horn as highly aphrodisiac. Okay, यानी जो गेंडे के सींग का जो चूर्ण बनता है, some people think that it's aphrodisiac or it arouses the sexual desire in people. Okay. Apart from that, her words of comfort were taken otherwise and played role to create an aphrodisiac effect on those people with crude mentality. यानी उसके जो प्यार भरे वर्ड थे या उसके जो कंफर्ट वाले वर्ड्स थे, उनको अदरवाइज लिया गया एंड पीपल विद क्रूड मेंटालिटी एक्चुअली टुक देम in a wrong sense. Okay, so that is basically called aphrodisiac. This is how you can use aphrodisiac. Synonyms क्या हो सकते हैं आपके aphrodisiac के? Noun के synonym हो सकते हैं love potion and philter. Okay, love potion and philter. Once again, I would like to remind, which I always do in every single session, the synonyms are only for similarity in meaning, but they are not the identical things. Okay, remember, synonyms cannot be replaced, or a word cannot be replaced by its synonym in every single context. Contexts are different. So whenever you are using a word or whenever you're using a synonym, make sure that you actually check the entry in the dictionary in order to find the right context. Otherwise, you will be making huge mistakes. Next, what can be the synonym of adjective? Stimulating and arousing. Okay, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. Now, what is the word origin? Word कहां से आया? Originated from the name of Greek god of erotic love, that is Aphrodite. एफ्रोडाइट नाम के एक गॉड थे ग्रीक में, मतलब ग्रीक में एफ्रोडाइट नाम के एक गॉड है, जिनके नाम से बेसिकली ये वर्ड आया है एफ्रोडीजियक. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज थॉनिक. ध्यान से समझिएगा इस प्रोनाउंसिएशन को. इसमें जो सी है स्टार्टिंग में, दैट इज साइलेंट. ओके, सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज थॉनिक. थॉनिक. ओके, दिस इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करेंगे. What are different meanings? Dark, primitive, mysterious. जब कोई चीज डार्क होती है, अंधेरे से परिपूर्ण होती है, मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी होती है, या फिर प्रिमिटिव यानी बहुत ही पिछड़ी हुई या बहुत ही गर्त में गिरी हुई चीज होती है, उसके लिए हम यहाँ पे थॉनिक यूज करते हैं. एंड देन ऑफ और रिलेटिंग टू द डेइटीज, स्पिरिट्स एंड अदर बीइंग्स ड्वेलिंग अंडर द अर्थ. पाताल लोक में निवास करने वाले जो देवता होते हैं, या जो भी ऐसी आत्माएं होती हैं, या जो भी ऐसे जीव जंतु होते हैं जो पाताल लोक में या फिर नीचे गर्त में निवास करते हैं, उनके लिए हम ये थॉनिक यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ वर्ड विद नेगेटिव कॉनोटेशन. आई होप आप कॉनोटेशन का मतलब समझते होंगे. कॉनोटेशन का मतलब होता है पॉजिटिव. हर वर्ड के दो कॉनोटेशन हो सकते हैं.
मतलब 3 कॉनोटेशन हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें ग्रुप, सो ग्रुप इज अ न्यूट्रल कॉनोटेशन वर्ड, ओके। अगर हम बात करें गैंग, गैंग इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड फॉर ग्रुप। अगर हम बोल रहे हैं कि ये लोगों का गैंग है तो इसका मतलब वो कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है। गैंग कभी भी किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए यूज नहीं होता, लेकिन जो ग्रुप है उसको पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो कॉनोटेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से आप उस वर्ड को यूज करते हैं। तो थॉनिक जो है वो यहाँ पे एक नेगेटिव कॉनोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? स्नेक्स एंड एम्फिबियंस have been considered thonic creatures in many cultures, okay. Snakes and amphibians have been considered thonic creatures. Thonic creatures मतलब जो पाताल लोक में निवास करते हैं। And then what are the related words? The first related word is autochthonous. Autochthonous. Now see, again pronunciation अगर आप ध्यान से देखें तो हम TOK पे हम जो है थोड़ा सा emphasize कर रहे हैं। Autochthonous, okay. Autochthonous, autochthonous का मतलब होता है indigenous, native, aboriginal, endemic और found in a locality where it is originating. For example, autochthonous tribe, यानी जो किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करने वाला या किसी रीजन का ओरिजिनल होता है। जैसे कुछ अबोरिजिनल प्रजातियां होती हैं, ठीक है। जैसे गोंडा प्रजाति जो है वो किसी एक स्पेसिफिक द्वीप पे पाई जाती है, या फिर जो कुछ जो मतलब लाइक अलग टाइप की प्रजातियां होती हैं, अलग टाइप के पेड़ या जीव जंतु या वनस्पति जो होती है वो किसी जियोग्राफिक रीजन की अबोरिजिनल यानी वहां की लोकल होती है, वहीं पे पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी जीव जंतु वनस्पति अथवा किसी भी प्रजाति के लिए हम ऑटोक्थनस यूज कर सकते हैं, विच इज एन एडजेक्टिव, ओके। सो थॉनिक इज आल्सो एन एडजेक्टिव, बट द अनदर फॉर्म इज ऑटोक्थनस, वी कैन आल्सो यूज इट एज एडजेक्टिव। वर्ड हिस्ट्री फ्रॉम ग्रीक वर्ड थॉर्न मींस अर्थ। ग्रीक में थॉर्न नाम का एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है अर्थ, तो इसी वजह से हम यहां से वहीं से बेसिकली ये वर्ड निकल के आया है थॉनिक। Remark: it is associated with things that dwell in or under the earth. It is most used in discussion of mythology. Generally ये जो word है आपका ये mythology में use होता है, but आप इसको general conversation में भी use कर सकते हैं. It is not very common. Okay, some words coming from Greek and some other cultures may be common, but some words are not so common. But again, if you're using it, it's a very good word. Let's go to the another word. So the another word is Hector. I hope Hector आज के टाइम में आप सभी लोग जानते होंगे। MG की एक गाड़ी आती है जिसका नाम है Hector. So what is the meaning of that Hector, or why MG has actually put the name Hector? You should know that, okay? So Hector verb और noun दोनों की तरह आप यूज कर सकते हैं। verb की तरह कब यूज करेंगे? To try to make somebody do something by talking or behaving in an aggressive way. जब आप किसी को डांटकर, धमकाकर या डरा धमकाकर कोई भी काम कराने की कोशिश करते हैं, then you hector that person. Okay, that is basically verb. किसी को डराना, धमकाना, अपना काम निकालने के लिए किसी को जब आप डराते हैं, धमकाते हैं, then it is called hectoring that person. And as a noun, it can be used a bully or a dominating person. If you are involved in hectoring a person, you are a hector. It means the person, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी को डराता है या धमकाता है अपना काम निकालने के लिए, या फिर लोगों को धमकियां देता है कुछ काम कराने के लिए, ऐसे व्यक्ति को हम हेक्टर कह सकते हैं। या किसी को लोगों को परेशान करता है या एक गुंडा मवाली की तरह लोगों को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता है, वो व्यक्ति हमेशा हेक्टर कहलाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस MG की गाड़ी हेक्टर का मतलब क्या है, कि इट इज डोमिनेटिंग अमंग द वर्ल्ड ऑफ कार्स। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हेक्टर। आज की हमारी सोसाइटी में इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की कल्चर और इस तरह की पर्सनालिटीज को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉकी नाम की एक मूवी थी। रॉकी वॉज नॉट अ गुड पर्सन, बट इवन देन ही वॉज अप्रिशिएटेड बिकॉज ही एक्चुअली मैचेस द इमेजिनेशन ऑफ पीपल इन टुडेज सोसाइटी। ओके, सो हेक्टर इसी तरह का एक वर्ड है जहां पे आप अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट आई एम पावरफुल बाय डोमिनेटिंग अदर पीपल और बाय सिंपली थ्रेटनिंग एंड बाय जस्ट बीइंग एग्रेसिव। राइट, अदर फॉर्म्स, हेक्टरिंग एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है एंड हेक्टरिंगली एडवर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल,
That one little boy hackers the entire class using his father's name and power. यानी अपने पिता के ओहदे और अपने पिता के पावर का यूज करके या पावर का नाम लेके, उनका नाम लेके, वो छोटा सा बच्चा पूरी क्लास को बुली करता है, हैक्टर करता है या पूरी क्लास को डराता धमकाता है. ठीक है. Don't get me wrong, I don't want to sound like a hacker, but you have to do it at any cost. ओके कभी कभी हमें ऐसा कहना पड़ता है कि भाई ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, बट आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ हैकर, बट यू विल हैव टू डू इट. यानी मैं एक गुंडे मवाली की तरह साउंड नहीं करना चाहता, या फिर मैं आपको ऐसा साउंड नहीं करना चाहता कि मैं आपको डरा रहा हूं या धमका रहा हूं. इसको धमकी मत समझिएगा, बट ये काम आपको करना पड़ेगा. ओके सो दैट इज बेसिकली two examples. Synonyms: bully, harass, browbeat and worry. Okay, these are the synonyms which you can use. Word origin. कहां से ओरिजिनेट हुआ? ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिड 17th सेंचुरी स्ट्रीट गैंग नेम हैक्टर्स. कुछ स्ट्रीट गैंग्स हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम हैक्टर हुआ करता था, वहीं से ये वर्ड बेसिकली ओरिजिनेट हुआ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज hermetic. Hermetic. Okay, what is the meaning of hermetic? It's an adjective, first of all. Completely sealed, insulated and protected from outside influence. जब कोई चीज पूरी तरीके से आउटसाइड इन्फ्लुएंस से कटी हुई होती है या फिर पूरी तरीके से सील्ड होती है, देन इट इज कॉल्ड hermetic. और क्लोज्ड एंड डिफिकल्ट टू बिकम पार्ट ऑफ. अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसका पार्ट बनना, या कोई ऐसी सोसाइटी हो जिसका पार्ट बनना बड़ा मुश्किल हो, दैट इज अ hermetic society. Relating to or characterized by subjects that are mysterious and difficult to understand. कुछ ऐसे गूढ़ सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सीक्रेट सब्जेक्ट, ऐसे मतलब ऐसे डिफिकल्ट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ ऐसे साइंस की कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, तो उन चीजों के लिए हम hermetic यूज कर सकते हैं जिनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लाइक क्वांटम फिजिक्स, सो दैट मे बी hermetic. उसको समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. Relating to an ancient occult tradition encompassing alchemy, astrology and theosophy. यानी जो एक पुरानी हम सभ्यता की बात करें या पुरानी ट्रेडिशन की बात करें, तो उसमें alchemy यानी जादूगरी, एंड एस्ट्रोलॉजी यानी जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एंड थियोसफी आपका भी एक अलग तरह का एक सब्जेक्ट या डोमेन होता है. तो जब आप इन चीजों की बातें करते हैं तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई वी कैन यूज hermetic फॉर दैम. और एनीथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड और इज अंडरस्टूड ओनली बाय अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल इज बेसिकली नोन एज hermetic. ओके, सो 3 अलग अलग डिफरेंट मीनिंग आपको देखने के लिए मिले. नंबर 1, ऐसा कोई चीज जो क्लोज्ड हो, आइसोलेटेड हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, डिफिकल्ट हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं. और ऐसा कोई ग्रुप या ऐसी कोई सोसाइटी जिसका मेंबर बनना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, उसको भी आप hermetic यूज कर सकते हैं. अदर फॉर्म्स: hermetically, hermit हम साधु या सन्यासी को भी बोलते हैं. A person who lives very simple life and does not meet or talk to other people. ऐसा व्यक्ति जो जनरली लोगों से मिलना जुलना पसंद ना करता हो, केवल और केवल अपनी सिंपलिसिटी के साथ लाइफ जीने में पूरा मतलब लाइफ जीने में ही विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम hermit या साधु सन्यासी कह सकते हैं. एग्जाम्पल: The pickle should be stored in hermetically sealed jar. hermetically sealed मतलब जिसके अंदर हवा भी ना जा सके, एयर टाइट जिसको हम बोलते हैं. तो जो पिकल यानी अचार जो है वो एक hermetically sealed जार में ही हमें रखना चाहिए. The hermetic world of Gonda tribe keeps their aboriginal rituals and values intact. Hermetic world of Gonda tribe. अगर आप गोंडा ट्राइब में जाने की कोशिश करेंगे, those people will not accept you. Okay, those people will not let you enter their society. Why? Because they want to keep their culture and tradition intact. So hermetic world हम क्यों बोल रहे हैं? उस सोसाइटी का पार्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल है. The last time I met him, he was reading hermetic text. Hermetic text मतलब पुराना ट्रेडिशनल टेक्स्ट जिसके अंदर हम अल्केमी, एस्ट्रोलॉजी और थियोसॉफी की बात करते हैं. अटेम्प्ट टू लर्न एंशिएंट आर्ट ऑफ फ्लाइंग विदाउट विंग्स. यानी वो एक hermetic टेक्स्ट यानी hermetic स्क्रिप्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसमें बिना पंखों के उड़ने की कला के बारे में बात की गई थी. And then living a hermetic life pays its rewards, but it's certainly not easy. यानी एक सन्यासी की जिंदगी जीना वास्तव में बहुत रिवॉर्डिंग होती है, but it is not very easy. Okay? Synonyms can be abstruse, arcane, deep, esoteric, and profound. You can use these words as synonyms. So the next word is Junoesque. Junoesque. Esque के ऊपर हम finally emphasize कर रहे हैं. Junoesque. Junoesque is adjective.
ओके, मार्क्ड बाय स्टेटली ब्यूटी, ऐसी सुंदरता जो मन मोह ले, दैट इज बेसिकली कॉल्ड जुनोइस्क। एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, हैविंग स्टेटली बेयरिंग एंड रीगल ब्यूटी लाइक अ गॉडेस ज्यूनो। गॉडेस ज्यूनो जुपिटर की वाइफ है, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी जूनो, द वाइफ ऑफ जुपिटर। ओके, सो जुपिटर की वाइफ जो थी जूनो, शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज अ गॉडेस। ओके, of course she was beautiful because she was a goddess. So generally ये जो word है ये आप girls के लिए या women के लिए यूज करेंगे because this belong to that specific gender only. So adjective and how exactly you can use it. What a Junoesque lady she is. Junoesque lady यानी बहुत ही सुंदर स्त्री है वो. She held herself with Junoesque grace and walked with the stiff, awkward gait of cow. Okay, यानी वो बहुत ही जुनोइस्क ग्रेस के साथ मूव करती है एंड स्टिफ ऑकवर्ड गेट, गेट बोलते हैं आपका चाल ढाल, राइट? सो दीज आर टू सेंटेंसेस. सिनोनिम्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग. सो जुनोइस्क इज अ वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल एडजेक्टिव. मर्क्यूरियल, क्यूर के ऊपर, क्यूर KYOOR, क्यूर के ऊपर आपको एम्फेसाइज करना है. मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज ऑफ मूड. जब किसी व्यक्ति का मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं मर्क्यूरियल. ऑफन चेंजिंग और रिएक्टिंग इन अ वे दैट इज अनएक्सपेक्टेड. अगर किसी व्यक्ति के जो मूड में चेंजेस हो रहे हैं, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, तब आप यूज करते हैं मर्क्यूरियल. ओके, एज एन एडजेक्टिव. एंड लाइवली एंड क्विक. अगर कोई चीज बहुत ही लाइवली है, कोई व्यक्ति बहुत ही लाइवली है, बहुत ही क्विक है, बहुत ही अच्छे तेजी से रिस्पॉन्स लेता है, उस व्यक्ति के लिए भी हम मर्क्यूरियल यूज कर सकते हैं. ठीक है. अदर फॉर्म्स mercurially, adverb, mercurialness and mercuriality. These words can also be used. Then comes your example. Her mercurial mood swings are responsible for her split from her 7-year-long relationship. यानी उसकी जो 7 साल की रिलेशनशिप थी, उसमें स्प्लिट का जो रीजन है वो केवल उसके मर्क्यूरियल यानी बहुत ही तेजी से चेंज होने वाले या बहुत तेजी से अपीयर होने वाले मूड स्विंग्स हैं. एंड देन एडवर्टाइजिंग इज अ मर्क्यूरियल बिजनेस. यहाँ पे मर्क्यूरियल किस तरीके से यूज हुआ है? मर्क्यूरियल यहाँ पे यूज हुआ है लाइवली बिजनेस और you can say quick changing business. Okay, advertising. His minister's mercurial brain aid him much desired victory over the enemy. Lively and quick decision making ability यहाँ पे mercurial को represent करती है. So mercurial brain का मतलब जिसके अंदर quick decision लेने की tendency हो या फिर जो lively हो यानी जिसके अंदर बहुत ही activeness, तो वो यहाँ पे हम use कर सकते हैं. What can be the synonyms? Volatile, fickle, flighty, lively, quick-witted. Okay, these are the different synonyms which you can utilize. Originated from the name of Roman god Mercury, who was very swift and fast in delivering messages. So Roman god Mercury जो थे वो बहुत तेजी से मैसेज को डिलीवर कर, बहुत तेजी से स्पीड से जाते थे. ठीक है, क्विक सिल्वर की तरह. क्विक सिल्वर आप लोगों को पता होगा, आपने बहुत सारी जो मूवीज देखी होंगी जिसमें क्विक सिल्वर, या फिर आपने अगर देखा हो तो एक सीरियल भी आता है, आई फॉरगॉट द नेम. ठीक है, तो उस सीरियल में भी एक व्यक्ति है जो बहुत तेजी से मूव करता है. तो इसी तरीके से मर्करी बहुत तेजी से मूव करते थे, बहुत स्विफ्टली मूव करते थे. उन्हीं के नाम पे ये मर्क्यूरियल जो है एक वर्ड आपका निकल के आया. नेक्स्ट वर्ड इज निमोनिक. आई बिलीव आप में से काफी सारे लोगों को ये वर्ड पता होगा, निमोनिक. निमोनिक इज बेसिकली एन एडजेक्टिव और नाउन. इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ. निमोनिक का मतलब क्या होता है? असिस्टिंग और इंटेंटेड टू असिस्ट मेमोरी. ओके, सो लाइक आपको ध्यान होगा जब हम छोटे थे तो हम बहुत सारी चीजों को उनके एक्रोनियम्स से याद करते थे या फिर राइम्स बना के हम जो है बेसिकली याद करते थे. तो जैसे पीरियोडिक टेबल हम याद करते थे. मुझे अभी भी याद है जब हम 12th क्लास में थे और हम केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद करते थे, तो लाइक लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, BMG का सरवारा, सॉर्ट ऑफ, राइट? सो उस तरीके से क्या होता है कि लाइक यू आर क्रिएटिंग निमोनिक्स or you are creating some aid to your memory so that you can keep that information for a longer time in easier way. Okay, so that is basically called your mnemonics. Noun,
अ निमोनिक डिवाइस और कोड, जब कोई आप एक निमोनिक क्रिएट कर लेते हैं तो वो जो फॉर्मूला या वो जो कोड बन के आता है उसको भी आप एज अ नाउन निमोनिक कह सकते हैं, ठीक है। निमोनिकली कैन बी एन एडवर्ब। टू डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल फ्रॉम प्रिंसिपल, यूज द निमोनिक एड द प्रिंसिपल इज योर पाल। ओके, सो यहां पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। सी, जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन, ओके, अ पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल, your school principal can be this spelling, but this principle is basically a सिद्धांत, an ideology, ओके। सो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? ये जो फर्स्ट वाला है इसमें PAL आता है और सेकंड वाले में PLE आता है, और PAL जो होता है वो किसी दोस्त के लिए यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, इसको एज ए निमोनिक आप यूज कर सकते हैं, ओके। आई स्टिल रिमेंबर यूजिंग वेरियस निमोनिक्स फॉर रिमेंबरिंग द पीरियोडिक टेबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप लोगों ने भी अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पीरियोडिक टेबल को याद जरूर किया होगा, और वो कुछ ना कुछ निमोनिक्स के माध्यम से ही किया होगा, ठीक है। इन क्लासिकल मिथोलॉजी, निमोसिन, I'm not sure whether I'm just pronouncing it right or wrong. It's Mnemosyne. The mother of Muses is the goddess of memory. Okay, mother of Muses. Muses were the 9 goddess. हम उनके बारे में भी नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे। तो उनकी जो मदर थी, she was the goddess of memory. Okay. Alright, so let's go to the next word. The next word is muse. Muse can be used as a verb and noun. Muse क्या होता है? वर्ब की तरह जब हम यूज करेंगे म्यूज को, तो वो हमेशा प्रीपोजिशंस के साथ यूज होता है, ऑन, ओवर और अबाउट। Okay, what is the meaning of muse as a verb? To become absorbed in a thought or to think about something carefully and thoroughly. If you are thinking about something very carefully and very thoroughly, then you are musing over it or musing on it or musing about it. Okay, so then you can use it as a verb. Another verb can be to say something in a thoughtful way. जब आप किसी चीज को बहुत सोच विचार करने के बाद बहुत ही थॉटफुल वे में बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज म्यूज, ओके। नाउन, any of the 9 sisters goddess in Greek mythology, presiding over songs, poetry and the arts and sciences, equivalent to the goddess Saraswati in Hindu culture. अगर आप हिंदू कल्चर में देखें तो गॉडेस सरस्वती इज बेसिकली द गॉडेस ऑफ ज्ञान, नॉलेज एंड ऑल दैट थिंग, ओके। म्यूजिक की गॉडेस, आर्ट की गॉडेस, नॉलेज की गॉडेस, विजडम की गॉडेस जो होती हैं वो सरस्वती कहलाती हैं। इन ग्रीक मिथोलॉजी there were 9 sisters who were considered to be the goddess of all these things, so those were also called muse. And another noun is muse to, a source of inspiration. जब आप muse को to के साथ यूज करते हैं तो वहां पे आप muse को यूज कर रहे हैं as a source of inspiration, okay. So what can be the other forms? Musings, नाउन, मेडिटेशन और थिंकिंग। जब आप किसी चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, देन दैट स्पेसिफिक इंसिडेंट और दैट स्पेसिफिक इवेंट इज कॉल्ड म्यूजिंग, ओके। एग्जांपल्स, म्यूज ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर अबाइडिंग बाय देम। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड यानी उनको मानने से पहले थिंक अबाउट देम, म्यूज ऑन देम, ओके। The monk mused various thoughtful ideas worth keeping note of. जो यहां पे जो म्यूज यूज हुआ है वो बेसिकली सेकंड मीनिंग, यानी ये वाला जो मीनिंग है, टू से समथिंग इन अ थॉटफुल वे। सो द मंक म्यूज्ड वेरियस थॉटफुल आइडियाज, यानी जो मंक था उसने बहुत सारे थॉटफुल आइडियाज एक्सप्रेस किए जो नोट बनाने लायक थे या फिर अपने साथ रखने लायक थे, ठीक है। My mother has always been a divine muse to me. यहाँ पे muse यूज हुआ है in the sense of source of inspiration. Okay, source of inspiration. तो जब आप कुछ लोग अपने मदर को, अपने फादर को, अपने गुरु को अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं, then they are muse to you. Okay, so muse का synonym क्या होगा? Ponder, meditate, ruminate. Okay, these 3 words can be used. Originated from the Greek mythology's 9 sister goddess of arts and science, which I have already mentioned. So the next word is Odyssey. Okay, Odyssey. Odyssey is a noun.
A long and eventful or adventurous journey of experience. सिंदबाद जहाजी, सिंदबाद का नाम आपने जरूर सुना होगा. सिंदबाद was an odyssey. ओके, सो एक बहुत ही लंबी आर्ड्यूअस एडवेंचरस जर्नी को हम ओडिसी बोलते हैं. एन इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वेंडरिंग और क्वेस्ट. जब आप किसी स्पिरिचुअल कॉज को फॉलो कर रहे होते हैं या स्पिरिचुअल कॉज के पीछे भाग रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर ओडिसी. ओके, सिनोनिम्स कैन बी जर्नी, वॉयज और ट्रैक. एग्जांपल्स: his odyssey from a delicate boy to valiant gladiator was incredible. यानी उसका एक बहुत ही डेलिकेट बच्चे से एक बहुत ही बहादुर ग्लैडिएटर बोलते हैं लड़ाक. एक्चुअल में जो हमारा ये जो कल्चर था, जो लाइक ग्रीक और रोमन कल्चर था, इसमें बेसिकली क्या होता था, इसमें ग्लैडिएटर्स हुआ करते थे. ग्लैडिएटर मूवी अगर आपने देखी हो तो दे यूज्ड टू फाइट इन अरीना. ओके, दैट यूज्ड टू बी अ गेम. सो वो जो लड़ने वाले लोग हुआ करते थे उन्हीं को हम ग्लैडिएटर बोलते थे. वो बहुत बहादुर और बहुत ही हिम्मत वाले लोग हुआ करते थे, राइट. सो एक बहुत ही डेलिकेट से बच्चे का एक बहुत बहादुर ग्लैडिएटर में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, दैट इज इनक्रेडिबल. An odyssey of self-discovery of Buddha is documented in this scripture. बुद्धा की एक एनलाइटमेंट को पाने की जो ओडिसी यानी जो जर्नी थी, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इस स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ. History and origin originated from Odysseus, the hero of Homer's Odyssey, who spent 20 years traveling from the Trojan War. Odysseus नाम का जो एक कैरेक्टर था होमर्स की ओडिसी नाम के क्रिएचर में, उसमें बेसिकली उसने 20 साल जो थे अपने ट्रैवल करते हुए गुजारे थे. तो वहीं से ये ओडिसी जो है एक वर्ड निकल के आया. The last word is saturnine. Saturnine. Okay, saturnine is adjective. Okay, looking serious and threatening of a person or his face, having a sardonic mocking aspect. जब किसी व्यक्ति के चेहरे पे बहुत ही सैड या फिर बहुत ही दुख वाले भाव हो तो हम उसको सैटरनाइन बोल सकते हैं. जैसे बोलते हैं ना, चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड सैटरनाइन लुक. एडजेक्टिव: सैड, ग्लूमी, कोल्ड एंड स्लगिश इन टेम्परामेंट. जब कोई व्यक्ति बहुत ही सैड हो, ग्लूमी हो, उसके चलने फिरने के अंदाज से भी आपको पता लग रहा है कि वो व्यक्ति ठीक महसूस नहीं कर रहा है, वो ग्लूमी महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं सैटरनाइन. बॉर्न अंडर और इन्फ्लुएंस्ड एस्ट्रोलॉजिकली बाय द प्लैनेट सैटर्न. जब हम कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति शनि की दशा में पैदा हो जाता है, ठीक है, कहते हैं कि ये तो बहुत ही अपशगुनी है. शनिचर जिसको बोलते हैं हिंदी में, लाइक ये बहुत ही शनि की दशा में पैदा हुआ है, ये तो सबके लिए अपशगुन ही लेकर आएगा. ऐसे व्यक्ति को पनौती जिसको हम बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. हालांकि पनौती नाम की कोई चीज होती नहीं है रियल लाइफ में. देयर इज नोबडी हु इज अपशगुनी और हु इज सैटरनाइन, बट यस, द वर्ड वी शुड नो. ओके, हैविंग अ सिम्टोमेटिक ऑफ लेड पॉइजनिंग. अगर किसी व्यक्ति को लेड पॉइजनिंग हो जाए तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी, किसी व्यक्ति में अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो उसके लिए भी हम सैटरनाइन यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो अदर फॉर्म्स आर सैटरनाइनली, सैटर्निनस एंड सैटर्निनिटी. ओके, these are adverb, noun and noun. You can use them accordingly. Parts of speech very important. Okay, examples: His saturnine smile was enough to raise doubt. यानी उसकी जो एक सैड सी स्माइल थी या फिर एक ऐसी स्माइल जिसके ऊपर शक किया जा सके. His saturnine smile was enough to raise doubt. His saturnine behavior was nearly constant for almost a week. यानी उसका जो वो एक अजीब सा, एक दुखी सा बर्ताव या सैड सा जो बर्ताव था, वो एक हफ्ते तक लगातार बना रहा. His father always cursed his saturninity, considering him responsible for the untimely demise of his mother. यानी उसके पिता हमेशा उसको अपशगुनी मानते रहे और हमेशा उसकी मदर के अनटाइमली डिमाइज यानी उनकी अकाल मृत्यु का कारण मानते रहे. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली हाउ यू कैन यूज सैटरनाइन और you can use other forms of saturnine. Synonyms can be sullen, gloomy, sulky, sluggish, morbid, ominous. Okay? History comes from the medieval Latin
बेसिकली देखा जाए तो शनि जो ग्रह है सैटर्न, वहीं से ये आया है, ठीक है। और ये हमेशा एक स्लोनेस और दुख से हमेशा रिलेटेड रहा है हमारी, लाइक अगर हम देखें तो हमारा जो हिंदू कल्चर है उसमें भी शनि को जो है बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है, तो आप इसको वहां से याद रख सकते हैं। Alright, so again, finally, this is the word, these are the words which we have learned today: chthonic, hector, Catholic. Just a moment. Catholic was not the word we learned today, so probably that's the mistake. Hermetic, Junoesque, Mercurial, Mnemotic, Odyssey, Saturnine. Okay, and aphrodisiac. So these were the words which we have learned today. So make sure you pause here for a moment and try to just recall that do you really remember the meaning of these words? If no, make sure you go back and complete this activity. Make sure you actually understand each and every single word. Okay, so last but not least, a journey of 1,000 miles starts from a single step towards it. Always remember, ये step आप ले चुके हैं. Do make sure that you keep on moving on this track. Do not pull your legs, pull your feet back. Do not get back on this path, because you are moving towards glory. You are moving towards an amazing vocabulary. Make sure you complete it every single day. Okay? So consistency, discipline, and practice, these are the values of Prime Skills which we are following here. Make sure you are actually watching the videos regularly. Alright, so thank you so much. If you have not done yet, make sure that you are subscribing the channel so that you can actually get all the details and all the new video links and notifications, and you can actually watch them as and when they are posted. Okay, so please subscribe. Also join us on WhatsApp, Telegram, and other portals where you can directly contact with me, direct connect with me. If you have any query, any feedback, any suggestion, anything which you think should be included in these videos, or any topic on which I should create videos, make sure you are putting that specific suggestion in the comment box so that I can actually connect with you, I can reply you, and I can get your message. Okay, if you really want to connect with me directly, make sure you are getting onto the WhatsApp and the Telegram channel, and we would be in direct contact. Thank you so much, my dear students. Thanks a lot once again for being part of this journey. Stay with me, and I can guarantee you that we are going to make it really big. We are going to become amazing communicators together. Okay, thank you so much again. See you in the next video. Have a good day ahead.